بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب سلام، خوب هستی شما؟ علیک السلام آقا. بلی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. چه کار میکنی؟ الان من بس شما صحبت میکنم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوب هستن. زندگی خوش میگذره؟ بله زندگی خیلی خوش میگذرد. انشاءالله که خوش بگذرد. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. خوب سکینه شما خوب هستی؟ سلام. بله صدای من میرسه سکینه؟ جی سلام آقا. من نه این خوبم. جی جی نگو، جی جی بگو. بله بله سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوب هستن ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. نها شام چه پختی؟ امروز من شام نمی پختم. نه فقط نپختم امروز من شام نپختم. چرا؟ وہ مجلس میں گئے تھے تو بله کھانا پیک. نه بگو. من رفته بودم السلام برای علیکم جناب. سخنرانی. من رفته بودم برای سخنرانی. وعلیکم السلام السلام. علیکم. بله برای سخنرانی رفته بودم. بله همونجا بله تبرک نظر دادن. بله خوب شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ نه من امروز شام نخوردم. من مشغول بودم. بله خوب شما یک دقیقه الان به السلام شما. علیکم. علیکم السلام. خوب هستی شما؟ من به خوبم الحمدلله. خانواده شما خوب هستن؟ خوب هستم الحمدلله. شب شما بخیر. شب شما بخیر بگو. بله شب شما هم بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشاءالله تعالی انشاءالله. خب شام خوردی شما؟ بله شام چه خوردی؟ سویه خوردی؟ خیلی خوب. آقای مطهر سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. من خوبم. شما خوبی آقا؟ بله خوبم. شما خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستند. شما چه کار میکنی؟ من کلاس هستم. بله خب شام خوردی شما؟ الان من شام خوردم. شام نخوردم. بله الان. آقا بله بفرمایید. یک سوال پرسید اجازت است؟ یک سوال دارم. اجازه هست؟ بله بفرمایید. آقا معاملہ یہ کہ وہ یہ جو آپ پریکٹس کرائیں گے 20 درس کی یعنی 11 لیسن کی. 12 ایگزام اسی 11 لیسن کا ہوگا نا؟ 12 کا. جی اس لیے کہ مطلب وہ ہم نے مطلب جو پہلے ہم لوگ کلپ دیکھ رہے تھے جو چل رہا تھا اس میں الحمدللہ آپ نے ایکسٹرا چیزیں بہت بتائیں ہم لوگوں کو. ہاں تو اس میں سے کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں. تو اس میں سے وہ چیزیں میں ابھی آپ کو پریکٹس میں بتاؤں گا کیا الگ سے ہیں. وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس پہ دھیان دیجیے گا. وہ ٹھیک ہے. جی اتنی ہارڈ نہیں ہے وہ چیزیں. ٹھیک ہے. بله خب آقای محمد مهدی نقوی خالصوی سلام. خوب هستی شما؟ آقای محمد مهدی هستن؟ الان اومدن.
دیگه خوب. فضا رضوی سلام خواهر شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیک السلام، شب شما بخیر. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی؟ من خوبم. سلام علیکم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ شام بگو دیگه. من سبزی خوردم، عدس سلام علیکم خوردم. و علیک السلام رقیه، خوب هستی کوفته شما؟ خوردم. کوفته خوردی؟ بله. خوشمزه بود؟ بله خوب. من رقیه خواهر شما اسم شما چیست؟ رقیه میرزا؟ بله. خواهر بله. این خواهر کیه؟ آره خواهر شباب فاطمه معصومه سمانی هستن. خوب هستی؟ السلام علیکم و علیک السلام، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. بله. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. انشالله وقت خوبی داشته باشید. جی آقا. بله. خوب خواهر. بله. سبھی کے خواهر سلام. خوب هستی شما؟ بله سلام. و علیک السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم ممنون. شما خانواده خوبی؟ شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرد. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ من عدس و نان خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. چه کار میکنی؟ الان من سر کلاس هستم. بله. از درس ها راضی هستی؟ بله از درس راضی هستم. بله. السلام علیکم آقا. و علیک خوب السلام هستی شباب شما؟ فاطمه. بله من خوب هستم. چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله من شما راضی هستم. زبان فارسی دوست داری؟ من خیلی دوست دارم. بله. چقدر دوست داری؟ بله آقا. چقدر دوست داری؟ یعنی چقدر یعنی کتنا؟ الان اینجا نگاه کن. بله. الان ببین آماده بشیم، کم آماده بشیم برای جنگ. بله. خب چقدر یعنی؟ و علیک السلام. چقدر کتنا چقدر یعنی کتنا کس قدر. بله. من همه جا هستم. من همه جا هستم. متوجه شدی چی گفتم؟ کی متوجه شد؟ کوئی سمجھا؟ چقدر یعنی کتنا زیادہ. قدر کتنا؟ بله. من همه جا هستم. نگاه میکنی؟ بله من همه جا هستم. بله آقا. خوب چقدر یعنی کتنا. خوب اب میں دیکھیے آپ لوگوں نے یہ ایمانداری سے بتائیے گا، سچ کوئی جھوٹ نہیں. یعنی جھوٹ کا لفظ مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن دنیا ایسی ہو گئی ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جھوٹ سچ کا لفظ آنے لگا. ورنہ اہل بیت کے گھرانے والوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے لفظ جھوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ کس نے 9ویں 10ویں درس کی پریکٹس کی جو میں نے کل بتایا تھا؟ آغا میں نے کیا ہے. آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 9-10 درس 9 درس 10 دونوں کیا ہے. کس نے پریکٹس کی ہے؟ ہم نے کیا ہے. ہم نے کیا. دو تین کی آواز بار بار آ رہی ہے. جی جب سے آپ پڑھا رہے ہیں شروع سے ہی کر رہے ہیں. جی آج میں آپ کو دیکھیے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں روز پریکٹس. جی آگا ہم کلاس نہیں لے پائے تھے کل کیونکہ ہم باہر گئے تھے. جی تو آپ ریکارڈنگ بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. پھر میں نے پہلے دن سے یاد ہے کہ میری کلاس میں یہ کہنا کہ میں مجبوری میں کل نہیں آ سکتی، یہ تو جائز ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میری مجبوری تھی میں نہیں آ سکی یا نہیں آ سکا. لیکن یہ کہنا کہ مجھے کل کیا ہوا نہیں پتا، یہ کرائم ہے میری کلاس میں، کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. کس لیے؟ مجبوری کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. آپ نہیں آئے، مجبوری تھی، ٹھیک ہے، ہم آپ کی مجبوری کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر ویڈیو نہ دیکھنا یہ کرائم ہے.
ठीक है जी जी। तो वीडियो जी, देखिए, वीडियो देखिए। मेरा इरादा ये है आधा आपको, हमने देखी थी। जी जी, 2-2 दर्स आपके रोज प्रैक्टिस कराऊं और आपको 2-2 दर्स रोज करने हैं। लेकिन मैं एक वीडियो सोच रहा था कि एक कामिल वीडियो एक हो जिसे देख के आप पूरे 12 दर्स की प्रैक्टिस कर सके। मैं आज आपको पूरे 12 दर्स का खुलासा बताता हूँ, 12 दर्स का खुलासा बताता हूँ। और खुलासा ये रिकॉर्डिंग चलिए आपके आगे काम आएगी, ये रिकॉर्डिंग आपके काम आएगी। काम आएगी दर्स नंबर 9, चलिए आगे दर्स नंबर 9 यानी इस किताब का पहला, इस किताब का पहला। देखिए मैं आपको इस किताब का खुलासा बता सकता हूँ, वर्ड मीनिंग तो आपको याद करने, वर्ड मीनिंग तो आप ही को याद करने हैं। अब बस आप में से जी कोई आगा ना बोले, गौर चलिए से सुने, जब मैं कहूं तब बोले। मैं पूरी किताब का आपको खुलासा बता रहा हूं। वो लोग जो लेट आते थे, नहीं आए थे या शुरू में नहीं थे, वो पूरी किताब इतना पढ़ ले जितना मैं आज पढ़ाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कर ले, बाकी वर्ड मीनिंग याद कर ले, आपकी तैयारी है। पहला दर्स इस किताब का जो कि 9वां दर्स है, सिर्फ वर्ड मीनिंग है, सिर्फ वर्ड मीनिंग है। बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दर्स इस किताब का, इस किताब का पहला दर्स यानी इस किताब में 9वां दर्स है जो कि पहला है। पहले दर्स में सिर्फ वर्ड मीनिंग है, सिर्फ अल्फाज माना है, सिर्फ अल्फाज माना है। माइक माइक बंद, माइक बंद, बिल्कुल सबका आगा माइक माइक बंद, ऑफ करवा दीजिए सबका माइक बंद। पहला सबक इस किताब का सिर्फ क्या है, उसके अंदर अल्फाज माना है। दूसरा सबक इस किताब का फकत अल्फाज माना है, फकत अल्फाज माना है। अब आइए इसका तीसरा सबक, तीसरा सबक कौन आया था भाई जी, तीसरा सबक पे आइए आप। और सुने सुने, कोई आया क्या जी, जी आइए। तीसरे सबक में प्रैक्टिस कराई गई है इन की, आन की, आस्त की, और फिर थोड़ा सा आगे चल के चीज की। इसी दर्स में काय की, हेलो हाँ, जब मैं कहूं तो जी जी हाँ वो भले आइए उस आवा वक्त, जी जी जी। तो तीसरे दर्स भले में आवा देखिए, पहले 2 दर्स में तो सिर्फ वर्ड मीनिंग है, और कमाल यह है कि इन पहले 2 दर्स में कोई अल्फाबेट वाली भी, अल्फाबेट के एतबार से नहीं है, अल्फाबेट के एतबार से वर्ड मीनिंग नहीं है, ऐसे ही वर्ड मीनिंग है। ठीक है आइए जी, ठीक है। और इन आन चीज की प्रैक्टिस की गई है इसमें। मैं ये पहले ऐसे बता दूं आपको इस पूरी किताब का खुलासा, फिर प्रैक्टिस कराता हूं। फिर इसके बाद तीसरे दर्स में क्या है, इन की, मतलब इन यानी ये करीब के लिए, इन यानी ये करीब के लिए, और आन यानी वो दूर के लिए, आस्त यानी है, और चीज यानी क्या है, चीज यानी क्या। तीसरे सबक में ये प्रैक्टिस की गई है, क्या की गई है, चौथा सबक, इन की आन की चौथे सबक में इन ऑन अस हाँ, और एक तीसरे दस में एक चीज और भूल गया मैं, वर्ड मीनिंग भी तो है ना, अल्फाज माना, अल्फाज माना तीसरे सबक में कौन कौन से अल्फाबेट टाइप से हैं, आ से, अलिफ से, और बा से। आ अलिफ, जी जी, बा बा से, आ अलिफ, जी हमारे क्योंकि लिखने का है, लिख लीजिए या रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा। फिलहाल जो ये तो मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, लिखा हुआ तो है, मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ ग्रुप पे भी देखा करें आप लोग। जिम्मेदारी बनती है, जो दर्स का ग्रुप होता है, आप नॉर्मल जो ग्रुप होते हैं उन पे नजर निगाह करें, इतनी तवज्जो से ना, लेकिन जो दर्स से मुताल्लिक होते हैं ग्रुप, उन पे हर मैसेज पे तवज्जो होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ग्रुप पे अलग ऐसे मैसेज सेंड ना किए जो जरूरी ना हो, ऐसे मैसेज सेंड नहीं करने चाहिए दर्स वाले पे, ताकि आदमी वरना गौर करना छोड़ देता है। मैं पीडीएफ भेज चुका हूं कल भी। तो तीसरे सबक में अल्फाबेट, अल्फाज माना है आ से, अलिफ से, बे से, और प्रैक्टिस किस चीज की कराई गई है, इन की, आन की, अस की, और चीज की। उसके बाद चौथा दर्स आता है, चौथे दर्स में बे के बाद क्या आता है, पे, ते, से, पे,
फे से, पे ते से अल्फाबेट है, अल्फाज माना, और प्रैक्टिस की गई है आया की प्रैक्टिस की गई है। आया यानी क्या है? आया यानी क्या? लेकिन ये आया का मतलब चे नहीं है, चे का मतलब भी क्या है, लेकिन ये आया से सवाल जब होता है जब किसी चीज के कंफर्मेशन के बारे में सवाल किया जाता है। आया एक किताब, क्या ये किताब है? तो अभी देखिए इसका जवाब क्या आता है, अभी मैं दिखाता हूं आपको इसका जवाब क्या आता है। इसका जवाब ये आता है, आया का जवाब आता है भले या ना, भले या ना। आया के जवाब में या तो भले आएगा, हाँ या ना। तो चौथे सबक में, इस किताब के चौथे सबक में क्या प्रैक्टिस की गई? हेलो, आया से आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके लिए, उसके यहाँ पर्चे पे लिख लिया है तो बेहतर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलूं ताकि खुलासा आपके किताब से हट के आपके सामने हो किताब का। पाक को नाम भले आगा पाकुनी। जी जनाब, पाक स्क्रीनशॉट कर लिया जनाब। भले ही आगा। आगा किसी और की स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं, ये नीचे न्यूज आ जाती है। ठीक है, चौथा सबक हो गया। पांचवा सबक, अब कौन सा सबक है इस किताब का? पांचवें सबक में क्या हुआ? पेटे से हो चुका, जीम चे है से वर्ड मीनिंग है, जीम चे है से वर्ड मीनिंग है, प्लस और क्या है इसमें? दारदारी नहीं, पहले चे की प्रैक्टिस कराई गई है, चे की पहले नहीं, वर्ड फेल सिखाया गया है। फेल क्या सिखाया गया है? वर्ब दाराद यानी वो रखता है, इसकी प्रैक्टिस की गई है पांचवें सबक में। जीम चे है से वर्ड मीनिंग, फेल दारद सिखाया गया है। तू दारद वो रखता है, आन्हा दारंद वो रखते हैं, तू दारी तू रखता है, शुमा दारी आप रखते हो, मन दारम मैं रखता हूं, तू दारी शुमा हम्मा दारी हम रखते हैं। दारद प्लस फेल के साथ साथ दारद के 3 सीधे सिखाए हैं इसमें, सिर्फ वाहिद वाले, दारद दारी दारम, वाहिद वाले 3, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम, 3 की प्रैक्टिस की गई है। और प्लस किस चीज की प्रैक्टिस की गई? चे की यानी क्या? चे यानी क्या? आया के माने भी क्या है, चे के माने भी क्या है, लेकिन आया के जवाब में भले या ना आता है, लेकिन और आया में कंफर्मेशन के लिए होता है, लेकिन चे तू चेदारी यहीं पे प्रैक्टिस कराई गई है। तू चेदारी तू क्या रखता है? मन किताबदारम, तू चेदारी मन चेदारम, तू किताबदारी, शुमा चेदारी मां किताबदारी, इस चीज की प्रैक्टिस की गई है पांचवें सबक में। यही था ना, अल्फाबेट जीम चे है, ये पांचवा सबक। छठे सबक में देखिए, छठा सबक, है के बाद खे दाल जी, खे दाल जाल खे दाल जाल की प्रैक्टिस की गई है, प्लस फेल यही दारी के 3 सीधे बाकी थे जमा के, दारंद दारीद और दारीद जमा वाले प्रैक्टिस की गई है, इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। और जी आप ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर? जी वीडियो अपलोड करके लिख दूंगा मैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। छठे सबक में ये प्रैक्टिस की गई है। हो गए 6 सबक, लिख रहे हैं भले सातवें सबक में आइए जनाब, मिटाइएगा मत जनाब, मिटाइएगा मत। सातवें सबक में आइए, सातवें सबक में भले आगा देखिए दाल जाल, अब सातवें सबक में ये भले आगा से की प्रैक्टिस की गई है। और फेल सिखाया गया है हस्तम हस्ती, प्लस फेल सिखाया गया है हस्तम हस्त जी, हस्ती हस्तम, ये पूरा 6 के 6 सीधे फेल हस्त सिखाया गया है। मन पिजिश हस्तम
تو استاد ہستی، شما دانشجو ہستید یعنی ہو، ہستی یعنی ہے، وہ ہے مطلب او پزشک است، وہ ڈاکٹر ہے، او پزشک است۔ اس کی پریکٹس کی گئی ہے 7ویں سبق میں۔ 8ویں سبق میں جی 8 کا سبق سین شین سواد ضاد کی پریکٹس۔ سین شین سواد ضاد سے جو ورڈ آتے ہیں وہ ورڈ لکھوائے گئے ہیں۔ پلس کیا سکھایا گیا ہے؟ عدد، گنتی 10 تک، لیکن میں نے 100 تک آپ کو 100 تک یاد ہونی چاہیے، میں نے آپ کو 100 تک کرائی ہے، 100 تک ہونی چاہیے۔ پلس اور کیا سکھایا؟ فیل کون سا؟ می خانم میں پڑھتا ہوں۔ ابھی تک کتنے فیل کی پریکٹس کرائی؟ دارت کی، ہست کی، می خانم کی۔ 8 سبق کو نام اسکرین شاٹ لے لیجئے جلدی سے جی، لیا اسکرین شاٹ؟ بلے آغا اسکرین شاٹ گروپ پہ بھی ڈال دینا جنہوں نے نہ لے پائے تو، ٹھیک ہے۔ 7واں سبق۔ 8ویں سبق پہ آئیے، 8ویں تو تھا ہی، 9واں سبق پہ۔ 9ویں سبق میں تو زو اینڈ غین سے ورڈ میننگ، تو زو اینڈ غین سے ورڈ میننگ سکھائی گئی ہے۔ پلس رو زیر دار، رو یعنی اوپر، کسی چیز کے اوپر، ہوئے میز، زیر یعنی نیچے، اور دار یعنی میں، اندر، دار یعنی میں، در مشتاق سیب کجا، اور پلس کجا کی پریکٹس کرائی گئی ہے۔ کجا یعنی کہاں، کجا کی پریکٹس کرائی گئی ہے یعنی کہاں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے سیب کجاست، سیب در بشقاب است، بشقاب کجاست، بشقاب روی میز است۔ بلے ساتھ جی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، اسکرین شو نہیں کر رہے ہیں۔ جی آگا اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے۔ تو 9ویں سبق میں تو زو اینڈ غین سے ورڈ سے جو ورڈ آتے ہیں ان کی پریکٹس کی گئی ہے، پلس رو زیر اور در کی پریکٹس، اور پلس کجا کی، کجا یعنی کہاں۔ مثلا سیب کجا، سیب در مشتاق، پلیٹ میں ہے، در جی جی 9ویں سبق میں کجا کی، کجا یعنی کہاں، سیب یعنی سیب، سیب کجا، سیب در مشتاق است، پلیٹ میں ہے، سیب کجا، سیب در مشتاق است، سیب در مشتاق است، پلیٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ بشقاب کجا، پلیٹ کہاں ہے، بشقاب روئے میز است، میز کے اوپر ہے۔ سطل زبالے ڈسٹ بین، سطل زبالے کجا، سطل زبالے زیر میز است، نیچے ہے۔ تو 9ویں سبق میں رو زیر دار کجا کی پریکٹس کرائی گئی ہے۔ رو زیر، مائک بند رکھیے، اور پلس کیا سکھایا گیا ہے؟ فیل کون سا سکھایا گیا ہے؟ می خوران، می خوری، می خوران، می خوران وہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے کی پریکٹس۔ می خوران، می خوران، می خوران، می خوران وہ کھاتے ہیں، می خوری تو کھاتا ہے، می خوری تم کھاتے ہو، می خوران میں کھاتا ہوں، می خوری ہم کھاتے ہیں۔ 9ویں سبق میں یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ تو زو اینڈ غین سے ورڈ میننگ، رو زیر اور در کی پریکٹس، رو یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی میں، اور کجا کی، کجا یعنی کہاں۔ مثلا میں کہوں اسب کجاست، گھوڑا کہاں ہے، اسب در جنگل است، بھلے، یا مثلا کیا کہیں، یخچال کجاست، یخچال در آشپزخانه است۔ روزنامے کجاست، روزنامے زیر میز است یا زیر کیف است، بائک کے نیچے ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب برابر؟ اور یہاں پر اس میں فعل سکھایا گیا ہے اس درس میں، بی قرآن بی قرآن۔ ایک بتا دو، اتنے سب بولتے ہیں، بچی کون ہے سب سے لیٹ بولتی ہے؟ جی اتنا تو فرق ہونا چاہیے جنریشن میں، آپ لوگوں سے بچی چھوٹی ہے تو آپ سے بعد ہی بولے گی۔ 9واں سبق 10 جی 1 منٹ 10واں سبق 10ویں سبق میں 9 سبق ہو گئے،
10वें सबक में सिखाया गया है जी। तो जो एंड गैन हो गया, फे काफ काफ गाफ। कितनी ताकीद के बाद भी माइक ऑन है। भले आगा। फे काफ काफ गाफ से क्या सिखाया गया? वर्ड मीनिंग। फे काफ काफ गाफ से वर्ड मीनिंग सिखाई गई है, और प्लस रंग, रंगों के नाम, रंगों के नाम सिखाए गए हैं, प्लस क्या सिखाया गया है? फेल। कौन सा फेल? मीन अवीसन। फेल सिखाया गया है, मीन अवीसन वो लिखता है, मीन नवीसद, मीन नवीसद, मीन नवीसद वो लिखता है, वो लिखता है, मीन नवीसद वो लिखता है। ठीक है, मीन नवीसद वो लिखता है। आइए 10 सबक हो गए नहीं? हेलो, भले होगा जी। 11वां सबक, 11वें सबक में क्या लिखवाया है? फे काफ काफ गाफ हो गया, लाम मीम नून, लाम मीम नून, लाम मीम नून से वर्ड मीनिंग, लाम मीम नून से वर्ड मीनिंग, प्लस सिफत। सिफत के बारे में बताया है, सिफत, सिफत यानी क्वालिटी। सिफत कौन सी सिफत? सिफत मौसूफ वाला सिफत नहीं, या मसलन सिफत तारीन वाला सिफत नहीं, नॉर्मल सिफत, क्वालिटी। अच्छा होना, मोटा होना, छोटा होना, बड़ा होना, जैसे आपने लिखा है ना, नहीं बुजुर्ग, इसकी अपोजिट क्या है? कुचित। अपोजिट क्या है इसकी? कुचित। ये सिफत, बुजुर्ग भी सिफत है, क्वालिटी है, कुचित भी, और रंग तो सारे क्वालिटी में आते ही हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे सिखाया गया था कुदाम। यहाँ पे क्या सिखाया गया था? कुदाम यानी कौन सा, कुदाम यानी कौन सा। शुमा कुदाम मीवे बिस्तर दूसरा, तो शुमा कुदाम सीब मिखुरी मार कौन सीबे किरमिज मिखुराम, सीबे किरमिज रेड वाला सेब। कुदाम यानी कौन सा, शुमा कौन सा, कौन सी। शुमा कुदाम लिबास दूसदारी बेगुमान मतलब दामन दूसदाराम, भले दामन यानी भले कुदाम। खो ये हो गया कितने 10? 11। 12वें दर्स पे बता आपने बात को नाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया? हेलो, भले भले होगा भले आगा। 12वां सबक और लास्ट सबक जो है इस किताब का, वो कैसे है? 12वां सबक। 12वां सबक लाम मीम नून हो गया, वाव है और ये से वर्ड मीनिंग सिखाए गए हैं, प्लस जमा की अलामत बताई गई है। जमा की अलामत हा, और प्लस क्या बताया है? सिफते सादा, तर, सिफते तर, सिफते सादा, सिफते तर और सिफते हेलो सिफते तरीन, सिफते सादा, सिफते तर, सिफते तरीन। इतनी सी बात है, सारी बात वर्ड मीनिंग की है, सारी बात वर्ड मीनिंग की है। मैं खुलासा कर सकता हूं, समझा सकता हूं, बता सकता हूं, वर्ड मैं याद नहीं करा सकता, वो आपको खुद ही याद करने हैं। लिख लिया ये वाव है, ये से वर्ड मीनिंग है इसमें, और जम की निशानी जमा, बहुत आसान है, चीजों के आगे हा बढ़ा दो जमा बन जाएगा। किताब किताब हा, दिराख दिराख था, सीब सीब हा, खिर्स खिर्स हा, यखचाल यखचाल हा, पिसर पिसर हा, दुख्तर दुख्तर हा। बस तो आपको नाम जी हेलो भले जी बात को नहीं। अब देखिए, आप इस क्या देखा आपने, इस किताब में 5 फेल सिखाए गए। इस किताब में कितने 5 फेल सिखाए गए। अब किस तरीके से मैं आपको समझाऊं। दारन जी, दारन दारन दारी नहीं, भी पहले में नहीं है ये। दारन दारी दारी दारन दारी दारी। अगर लास्ट वाले में क्या आपको बताऊंगा अभी फिर से। ये 6 हो गए। एक फेल ये सिखाया था,
हस्ती, hati, हस्ती, hati, हस्तम, हस्ती। ठीक है, एक फेल ये सिखाया था, एक फेल मी खानम, मी खानम, मी खानी, मी खानन, मी खानंद, मी। माइक बंद कीजिए, किसी का गड़बड़ कर रहा है काशिफ साहब, ये आपके माइक की आवाज है। मी खानम, मी खानन, मी खानी, मी खानीद, मी खानम, मी खानीम, मी खानीम। ठीक है, एक फेल ये सिखाया था, एक मी खुराम, मी खुराम, मी खुराम वाले सैयद फरहीम भले जी मी खानत को मी खानत मी खान, हाँ मी खानन, खा नद, मी खानन, मी खानी, मी खानी, मी खानम, मी खानी, मी खुराम, मी मी खुराद, मी उसमें हट करके खाने पीने की बात है ना, मी खुराम पहले अपने आप, मी खुराद, मी खुरान, मी खुरी, मी खुरीद, मी खुराम, एक दो तीन चार, मी खुराम, मी खुरीम, मी खुरीम। ठीक है, चार पर फेल हो गए, पांचवा मी नवीसम, नी नवी साद, मी नवी साद, मी नवी सन, मी नवी सी, मी नवी सी, मी नवी सीद, मी नवी सीद, भले मी नवी सम, मी नवी सम, मी नवी सीम। 5 फेल सिखाएगा इस किताब में। दारत वो रखता है, ऊ किताब दारत, शुमाचेदारी, माँ किताब दारी, हस्त ऊ पिजिश्क आस्ट वो डॉक्टर है, आन्हा परस्तार हस्तान वो नर्स हैं, तू बिकारस्ती वाले 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 जहाँ पे हस्त का इस्तेमाल करना है वहाँ पे अस्त का अस्त भी कह सकते हैं, हस्त भी कह सकते हैं वाले। तू तू तलब हस्ती, शुमा दानिशजू हस्ती, आप स्टूडेंट्स हैं, मन मन इंसान हस्तम, भले इंसान भले भले ही शक्ल जो है पांडे से मिलती हो बकौल कुछ लोगों के, भले मन इंसान हस्तम, भले माँ तालाबे हस्ती, माँ तालाबे हस्ती, हम स्टूडेंट्स हैं। मी खानत वो पढ़ता है, मी खानन वो पढ़ते हैं, ऊंचे मी खानत वो क्या पढ़ता है, वो किताब मी खानत, आन्हा चे मी खानन आन्हा किताब मी खानन, तू चे मी खानी तू दर्स मी खानी, रोजनामे मी खानी वाले, शुमा चे मी खानीद बेगू माँ किताब मी खानी, मन चे मी खाना मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं दर्स मी खाना, शुमा शुमा वाले शुमा चे मी खानी बेगी माँ किताब मी खानी, ये खाना नहीं पढ़ना, वो पढ़ता है। मी खुराक वो खाता है, ऊंचे मी खुराक वो सीब मी खुराक, आना चे मी खुराक आना मूज मी खुराक वो केला खाते हैं, तू चे मी खुरी तू चे मी खुरी तू बिरयानी, मतलब आपका ईमान बिरयानी में खुराक, शुमा चे मी खुरी आप क्या खाते हैं, कहीं भले माँ भले गजा में कुरान वो खाते हैं, मी खुराम माँ सीब मी खुराम, माँ सीब मी खुरी माँ सेब खाते हैं। मी नवीसत वो लिखता है, ऊंचे मी नवीसत, चे यानी क्या, ऊंचे मी नवीसत वो क्या लिखता है, वो दर्स मी नवीसत, आधा चे मी नवीसत, आधा तकलीफ मी नवीसत, होमवर्क लिख रहे हैं, तूचे मी नवीसी ना, नामे में नवीसी, मैं कहूँ मन चे भी नवीसी, मैं क्या लिख रहा हूँ तो आप कहिए तू नामे भी नवीसी, माँ चे भी नवीसी, हम क्या लिख रहे हैं तो आप कहिए शुमा भले दर्स भी नवीसी, तू चे भी नवीसी, आप कहिए मन नामे भी नवीसा, माँ नामे भी नवीसी। ये 5 फेल सिखाए गए हैं, पाक को नाम स्क्रीनशॉट ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस किताब में 5 फेल सिखाए गए हैं।
और ये सब हाल है, सब हाल है, सब फेले हाल है ये ग्रामर के एतबार से। आगा ये जी। मी वाला इस्तिमरारी है ना? नहीं, मैं बताऊंगा अभी। मी, हर मी को देख के इस्तिमरारी मत समझना। माजी मुतलक के शुरू में मी हो तो माजी इस्तिमरारी है, ये मुजारे के शुरू में मी है। खानदान का मुजारे खानाद, खुरदन का मुजारे खुराद, नविश्तर का मुजारे नवीसाद। मुजारे के शुरू में अगर मी हो तो हाल है, और अगर ये खानदान से खान होता, खुरदन से खुर्द होता, नवीसत से नविश्तर से नविश्त होता, और उसके शुरू में होता मी नविश्त, वो लिखता था, तो माजी इस्तिमरारी होता। ये हाल है, ये हाल है। बात ना मी लगा के प्रेजेंट में बात करते हैं। हर मी को देख के माजी इस्तिमरारी मत सोचना, मी मुजार हाल में भी लगता है, लेकिन फर्क ये है माजी इस्तिमरारी में माजी के शुफेल, माजी मुतलक के शुरू में मी होता है, और ये मुजारे के शुरू में होता है। आइए 5 फेल सिखाए गए, इसमें 5 फेल सिखाए गए। और क्या सिखाया गया इस फेल में, इस किताब में? इन, आन, आस्क, चीज, चीज, चेयर, ठीक है, चेयर, यही चेयर, आया, और जो मैंने आपके लिए सिखाया बराए, माले जी, और कीस्ट। कीस्ट यानी किसका है, कीस्ट यानी किसका है, चीज यानी क्या है, कीस्ट यानी कौन है, कौन है या किसका है, कौन है या किसका है, खुदाम। किसका, किसका है, कौन, किसका है, किसका है, या कौन है, इन कीस्ट। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? भले आगा, भले आगा। जी, भले आगा। ठीक। और आपने एक नॉर्मल सिफत के बारे में बताया है, एक सिफत सादा, तार और तरीन और रू का जीर, और ये चीजें सिखाई हैं। अब मैं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। आ रहे हैं, मेन चीज तो मैं भूल ही गया, अलग से मैंने क्या सिखाया, रंगों के नाम, दिनों के नाम, गिनती, एक मिनट, दिनों के नाम, ईरानी महीनों के नाम, ईरानी महीनों के नाम, फसल यानी मौसम, फसलों के नाम, फसलों के नाम, दिनों के नाम, शब्बे, एक शब्बे, दो शब्बे, से शब्बे, चार शब्बे, पांच शब्बे, जुमे। उसी में मैंने इमरूज, बेरूज, परिरूज, ये गुजरे हुए परिरूज, ये गुजरे हुए आइंदा, इमरूज, फरदा, ये मैंने इसी के साथ सिखाया। इमरूज यानी आज, दिरूज गुजरा हुआ कल, परिरूज गुजरी हुई परसों, फरदा आने वाला कल, पसफरदा आने वाला परसों। जी, महीनों के नाम, जी क्या कहा आपने? इम शब्द, दी शब्द, ये तो दिन थे, इमरूज यानी आज का दिन, दिरूज कल का दिन, परिरूज परसों का दिन गुजरा हुआ, फरदा आने वाला कल, पसफरदा आने वाला परसों। और इसी में रात की बात की थी, दिशा गुजरी हुई रात, दिशा इमशब यानी आज की रात, और दिशा परिशब, आज रात, कल गुजरे हुए की रात, और परसों गुजरी हुई रात, और फरदाशा पसफरदाशा, फरदाशा पसफरदाशा, ठीक है, ये सिखाया था। महीनों के नाम, फरवरदीन, उर्दीबाइश, खुर्दाद, 3 महीने, 3 करके, फरवरदीन, उर्दीबाइश, खुर्दाद, 3 मुर्दाद, शहरीवार, मेहर, आबाद, आदा, दी, बहमान, निस्फन। 12 महीने में 4 फसलें हैं, 3 करके। शुरू के 3 महीने में फसल का नाम है बहार, फिर उसके बाद गर्मी, ताबिस्तान, फिर उसके बाद पाइज यानी पतझड़, पाइज यानी ज़ेमिस्तान, फिर ज़ेमिस्तान यानी सर्दी। 3 महीने बटी हुई है। शुरू के 3 महीने बहार, फरवरदीन, उर्दीबाइश, खुर्दाद, तीर, मुर्दाद, शहरीवार, अगले 3 महीने गर्मी, मेहराबाद, आजाद, 3 महीने पतझड़, दी, बहमान, निस्फन, सर्दी। ये 4 फसलों के नाम, महीनों के नाम ये लिखवाया था। और इसी के जिम्मे में मैंने क्या सिखाया था,
بله کدام فصل بیشتر دوست داری یا بعد از پنجشنبه چندشنبه است چندشنبه یہ چیز ہے بله فصل یا مثلا فروردین ماہ چندم اسی میں نے چندم کی پریکٹس کرائی تھی چندم یعنی کون سا چندم یعنی کون سا بله آپ سے کہیں مثلا فصل پاییز فصل چندم سال است فصل پاییز فصل چندم سال است فصل پاییز فصل سوم سال است اسی میں ہم نے یہ پریکٹس کرائی تھی اور پاک قرآن ہلو بھلے آغا پاک اور کیا میں نے الگ سے بتایا تھا الگ سے مسالوں کے نام الگ سے مسالوں کے نام مسالوں کے کسی نے اسکرین شیئر کر دی مسالوں کے نام چلی گئی نہیں آ رہی جی مسالوں کے نام اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈاکٹری ساز و سامان کا کچھ لکھوایا تھا اور ریلیٹیوز کے نام جی بیماری کے نام بیماریوں کے ڈاکٹری میں آ جائیں گے اور رشتے دار تھوڑے بہت رشتے دار اور ہلو جی اور کیا تھا بھلے بس آ گئے اتنا ہی باڈی پارٹ جی جسم کے حصے زیادہ ہو گیا آگا چلے کوئی بات نہیں آپ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے جسم کے حصے کتنا آسان ہے پوری میں نے کتاب سمجھا دیا آپ کو نہیں جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آیا جی بہت تھوڑا سمجھ میں آیا بہت تھوڑا جی حبیب الحسن صاحب کاشف صاحب طاہرہ کاظمی سیدہ فرحین سیدہ گھبرانی کائنات فاطمے فضا رضوی چاندنی آل زہرا گل زہرا فہمی سمجھ میں آیا کچھ باقی بس آپ کے یاد کرنے کی دیر ہے باقی تو ایک دم تیار ہے کتاب ٹھیک ہے تھوڑا سا میں لیجیے پریکٹس کرا دوں اب آپ کو تو میں نے کل کرا دی این یعنی یہ آن یعنی وہ ان چیز مثلا یہ کتاب کیا لیں آپ کیا لیں مطلب کتاب لے لیجیے چلیے آسان سا جب تک آپ ورڈ یاد نہیں کرتے کہ جب تک ان چیز ان کتاب است اور دور سے کہیں تو آن کتاب است پھر ان کتاب آیا ان کتاب است بھلے ان کتاب است بھلے ان کتاب آیا ان سیب است نہ ان کتاب است ان چیز پھر چیز پہ آئے ان چیز یہ کیا ہے ان کتاب بھلے پھر دارت کا استعمال پڑ جائے شما چے داری چے کا استعمال شما چے داری من کتاب دارا ہوں میں دارت کا بتا دوں پہلے فعل کا بتا دوں اب آپ کو دیکھیے فعل جو ہوتا ہے فعل کہتے ہیں کام کو اب جب ظاہر بات ہے کام ہے تو کوئی تو کام کرے گا جو کام کرتا ہے کام کرنے والا ہے اسے ورب فاعل کہتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں فاعل بولتے ہیں سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں سبجیکٹ وہ فیل کا نہیں سمجھا ہم کو فائل کہتے ہیں فعل یعنی کام ورب مارنا پیٹنا کھانا سونا یہ سب کام ہی تو ہیں جی کھانا پینا سونا جاگنا جنہیں انگلش میں ورب کہتے ہیں ان ورب کو کوئی تو کام انجام دے گا خود بخود ہو جاتے ہیں سبجیکٹ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں فارسی میں اور عربی میں غائب کام کو انجام دینے والا ہے تو غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے یا تو نہ تو میں ہوں نہ ہی تو ہے وہ ہے تو اور میں سے ہٹ کے یا سیکنڈ پرسن ہے اسے حاضر کہتے ہیں حاضر یعنی تو حاضر ہے نا حاضر سبجیکٹ وہ حاضر ہے یا پھر سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے اس فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں متکلم آپ دیکھیے یا تو فرسٹ پرسن ہے یہ تو آپ نے انگلش میں بھی جانتے ہیں ہر زبان میں ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہر زبان کی بات ہے تو یہ جو سبجیکٹ ہے فعل کو انجام دینے والا کام کو انجام دینے والا ورب کو انجام دینے والا یہ جو سبجیکٹ ہے فاعل جسے کہتے ہیں یا تو فرسٹ پرسن ہے جسے متکلم کہتے ہیں یا وہ سیکنڈ پرسن ہے جسے حاضر کہتے ہیں تو اور شما تو اور آپ اور متکلم میں یا ہم اور غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن ہے یعنی نہ میں ہوں نہ ہی تو ہے اسے کہتے ہیں غائب اور ان کی دونوں قسمیں ہیں ایک فارسی میں کیوں دو قسمیں ہیں آپ کو سمجھ میں آیا
क्योंकि या तो वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, एक होगा या एक होगा तो उसे कहेंगे गायब, वो वाहिद यानी एक, और एक से ज्यादा होगा तो जमा। ऐसे ही ये भी वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा, यही सिखाया था। अब क्या हुआ, वर्ब को अंजाम देने वाला जो सब्जेक्ट है फाइल, या तो वो वाहिद गायब है या जमा गायब है, या वाहिद हाजिर है या जमा हाजिर है, या वाहिद मुतकल्लिम है या वाहिद गायब के लिए आता है ऊ, जमा गायब के लिए आता है आन्हा, आन्हा, वाहिद हाजिर के लिए आता है तू, जमा हाजिर के लिए आता है शुमा, वाहिद मुतकल्लिम के लिए आता है मान, जमा मुतकल्लिम के लिए आता है मा। ऊ यानी वो एक, चाहे वो लड़की, लेकिन हाँ औरत मर्द का फर्क नहीं है ईरान में। ऊ यानी वो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आना वो सब एक से ज्यादा, वो चाहे वो लड़की हो चाहे तू, तू यानी एक चीज, तू उर्दू में भी तू ही कहते हैं, अदब में एहतराम में शुमा कहते चलेगा, आप, शुमा जमा के लिए आता है आप, मान मैं, माँ चाहे मर्द हूं मैं चाहे औरत हूं, मान, माँ यानी हम, चाहे औरतें हो तब भी मन कहेंगी, मर्द हो तब भी कहेंगे माँ, क्योंकि फेल को और काम को अंजाम देने वाला एक वर्ब है हमारे पास। मिसाल के तौर पर खुर्दान यानी खाना, खाना एक काम है, उसे कहेंगे मसलन ऊ मी खुरात, मी खुरात वो खाता है, आन्हा मी कुरान, तू मी खुरी, शुमा मी खुरी, मान मी कुरान, जो नए हैं समझदार हैं तो क्या चीज का फर्क दिख रहा है आप सब जगह, क्या फर्क दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, जमा गायब के लिए नून दाल बड़ा है, तू के साथ या बड़ा है, शुमा के साथ ये दाल बड़ा है, ये दाल, मीम के साथ मीम, मा के साथ ये आमीन। तो क्या मतलब, जमीर से कहते हैं जमीर, जमीर, जमीर कहते हैं इसे, जमीर यानी फाइल की निशानी, फाइल की अलामत, सब्जेक्ट की निशानी। इस नून दाल से पता लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जमा गायब है, इस ये से पता लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा फाइल वाहिद हाजिर है, इस ये दाल से पता लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा फाइल जमा हाजिर है। ये फाइल की निशानी से कहते हैं जमीर, और फारसी अरबी में क्या कहते हैं इसको, जमीर, ज़ुआत से जमीर। जी कुछ कह रहे थे आप सर? जी सर आप पढ़ा रहे थे ना सर पे मुकद्दमाती में जी, वो जमीर पढ़ा रहे थे सर। जी, सर ये भी वैसे ही है ना, ये फारसी है वो अरबी है, ये फारसी है जी। जमीर का मतलब वही है जो वहां है, फाइल का मतलब यहाँ वही है जो वहां है, गायब हाजिर मुतकल्लिम जो यहाँ है वही वहां है, ये तो हर जबान में है, बस ये फारसी है वो अरबी है, ठीक है। देखें ये है फाइल की निशानी। पाक को नाम जी, अब क्या समझे, अब ये समझे कि जमीर जो हुई, एक तो पहला सीगा बगैर उसके, मसलन खाली, मसलन ऊ के साथ खाली, कोई जमीर नहीं, फेल, ऊ प्लस वर्ब यानी फेल और आगे खाली, आना के साथ नून दाल, तू के साथ या, शुमा के साथ ये दाल फेल के आखिर में, और मन के साथ फेल के आखिर में मीम पड़ेगा, मां के साथ फेल के आखिर में ये मीम पड़ेगा, समझ रहे? ये फेल है। अब आइए, अब इधर देखिए, किताब, इन किताब अस्त, बोलिए इन किताब अस्त, अब दूर से आन किताब अस्त, वो किताब, आन किताब अस्त। अब आइए, इन चीज, ये क्या है, इन किताब, आन चीज वो क्या है, आन किताब अस्त। फिर आया इन किताब अस्त, क्या ये किताब है, बले इन किताब अस्त, आया आन किताब अस्त, बले आन किताब अस्त, आया। अब ये सही सवाल का सही जवाब, सही गलत सवाल कीजिए, आया इन सीब अस्त, ना इन सी इन किताब अस्त, आया सीब अस्त, ना इन किताब अस्त।
ठीक है। नाइन किताब है। अब दारदारी का ये शुमा चेदारीद, शुमा किताब चेदारीद, दाराम, किताब माँ किताब दारी, माँ किताब रीम, ऊंचे दारद, ऊ किताब दारद, आना किताब दारद, ऊंचे दारी मन किताब दारद, शुमा दारी, आकई माँ किताब दारी, मन आकई तू आकई, मैं कहूँगा मैं क्या रखता हूँ तो आप कहेंगे तू या एहतरामन शुमा, शुमा किताब दारी। देखिए एहतरामन तू ना कहे बदतमीजी सा लगे कभी तो आप एहतराम के लिए शुमा कह सकते हैं, लेकिन फेल के आखिर में यही लाइएगा तो उससे पता लग जाएगा कि ये, हालांकि ये भी ला सकते हैं एहतरामन। मन किताब दारा, माँ किताब, ये तो हमने ये सीखा और ये वर्ब हो गया। अब माले चीज और बड़ाई की पे आ जाइए। इन किताब बराए चीज, बराए चीज यानी बराए चीज, किताब बनाए बराए चीज यानी किस लिए है, इसलिए है किताब बनाए खानदान है, किताब बराए खानदान है। हम बोले 10 शुई बराए चीज, 10 शुई बराए 10 शुस्ताना, 10 शुई बराए 10 शुस्ताना, ज़र्फ शुई बराए चीज, ज़र्फ शुई बराए ज़र्फ शुस्ताना, उतार के खाब बराए चीज, उतार के खाब बराए खाबिदाना, संदली बराए चीज, संदली बराए निशस्ताना, सीब बराए चीज, सेब खाने किस लिए, खुर्दान। सीब बराए खुर्दान, कुछ मसला लिखवाए, मतलब याद रखना, खुर्दान, निशस्तान, भले। और ये हो गया बराए चीज की। अब देखिए माले कीस, माले कीस यानी किसका है, माले कीस यानी किसका है, किसका है या किसकी है। इन किताब माले कीस, इन किताब माले किताब माले मराज, इन किताब माले कीस, इन किताब माले अहमद की है, अहमद की है। इन किताब माले ज़ैनब, ये किताब ज़ैनब की है। इन यखचाल माले कीस, यखचाल माले ज़हरास, लिबाशुई, लिबाशुई माले कीस, लिबाशुई माले अहमद की है। भले माले चीज बराए की इसकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और क्या रह गया बताइए जी, सिफत रूज़ीर, अब आइए रूज़ीर और दार। रू, देखिए मैं एक वर्ड इसलिए लिखवा रहा हूँ, वर्ड तो बहुत ज्यादा है वो आपको याद करने हैं। रू जीर और दार, किताब। अब देखिए कुजा यानी कहा, अब कुजा की प्रैक्टिस कीजिए। किताब कुजास, किताब रुए मीज़ास, किताब कुजास, किताब रुए मीज़ास, किताब कुजास, किताब कुजास, किताब दर की पास, बैग में है, में रू यानी ऊपर, जी यानी नीचे, जी यानी नीचे, दर यानी में। किताब कुजास, किताब दर की पास, किताब दर की पास, दर की किताब पास, कुजास, बैग में। किताब जीरे की पास, बैग के नीचे, किताब जीरे किताब मीज़ास। जीरे मीज़ास, भले। यखचाल कुजास, यखचाल दर, कीफ कुजास, कीफ रुए मीज़ास, टेलीफोन कुजास, टेलीफोन रुए मीज़ास, वो रुए मीज़ास। सतले जुबाले डस्टबिन, सतले जुबाले कुजास, सतले जुबाले जीरे मीज़ास, में इसके नीचे है। मुतवज्जिह शुदी, रूज़ीर की प्रैक्टिस हो गई, रूज़ीर की प्रैक्टिस हो गई। कुछ सिफात की भी कर लीजिए। बुजुर्ग यानी बड़ा ही सिफत है, इसकी अपोजिट है कूची यानी छोटा, दोनों सिफत है भाई, दोनों सिफत है। रंग जितने भी हैं वो सब सिफत है, रंग जितने भी हैं वो सिफत है। और इस सिफत का मतलब अच्छाई मत समझना, सिफत अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी को, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। कभी बुजुर्ग होना कभी अच्छा भी है। और मसलन अभी देखो चाक, एक मिनट रुकिए, चाक, चाक यानी मोटा, चाक के अपोजिट क्या है, लागर। ये चाक और ये अच्छाई या बुराई तो हमारी फर्ज की हुई है ना। काला रंग हमने, कुदरत ने बुरा बनाया है नहीं, लेकिन काले रंग को लोगों ने बुरा बना दिया तो बुरी सिफत में आ जाता है। मसलन ऐसे चाक ठीक है, हो सकता है लड़कों के लिए चाक अच्छा ठीक हो, मसलन लड़कियों के लिए मसलन चाक बुरा हो सकता है, बुरी सिफत हो मसलन, भले आगा, ठीक है। तो
चाक मानी मोटा लागर एक तो ये सिफत, कुचिक बुजुर्ग, चाक लागर, तमीज कसीफ, तमीज यानी मैला, कसीफ यानी गंदा, कसीफ यानी गंदा, ये सिफतें हैं। फिर उसके बाद सिफत तर और तरीन तो आपको मालूम ही है, अगर किसी चीज का मुकाबला कोई नहीं है, बस ऐसी सिफत बयान कर रहे हैं। इन किताब मसलन इन दराज मसलन इन दीवार बुजुर्ग, ये दीवार बड़ी है, ठीक है, कोई मुकाबला नहीं, बड़ी है, कोई बात नहीं, हमने सिफत बयान कर दी। लेकिन अब इस दीवार का मुकाबला दूसरी दीवार से हो रहा हो, बुलंद भले कूदा, बुलंद कूदा, मसलन इंदिरा बुलंद, ये पेड़ ऊंचा है, हमने कोई बस सिफत बयान की, किसी से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन एक दफा इस दरख्त का मुकाबला दूसरे दरख्त से हो रहा है, तो आप कहेंगे बुलंदतार, इंदिरा बुलंदतार अज आन दिराफ्तास, इंदिरा बुलंदतार अज आन दिराफ्तास, ये हो गया तार जब दो का मुकाबला हो। लेकिन जब एक चीज का सब चीजों से मुकाबला हो, दरख्त का तमाम दरख्तों से है, तो कहेंगे इंदिरा बुलंदतरीन दिराफ्तास, इन पिसार चाक तरीन पिसारास, मसलन समझ गए? नए लोग समझ गए? भले आगा जी, बस आपको वर्ड याद करने हैं, यकीन जानिए बहुत आसान है। मैंने इतने दिन में पढ़ाई है वो इसलिए कि ये शुरुआत है, प्रैक्टिस बोलचाल की कराने के लिए मैंने इतना वो टाइम लिया है, वरना ये 15-20 दिन की भी किताब नहीं थी। लेकिन हमारा मकसद किताब खत्म करना नहीं था, हमारा मकसद स्पीकिंग था, सीखना था, ठीक है, स्पीकिंग था, स्पीकिंग, इसलिए इतना टाइम लिया। और ये दर्स मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है ये वाला, ताकि अब ये मैंने पूरे दर्स का आपको कोई चीज रही तो नहीं जिसकी प्रैक्टिस नहीं कराई अभी? गिनती आगा वो जो मंथ जी जो मंथ करवाए ना, मंथ जी महीनों के नाम, जी वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये बुक में तो नहीं है ना, तो वो एक्स्ट्रा में जो आपने करवाए। बात चीजें बहुत अहम है, मैंने बताई है, जैसे रंगों के नाम है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, फसलों के नाम है, या मसालों के नाम है, ये याद कर लें। आप ये बताइए कि आप मार्कशीट या डिग्री के लिए पढ़ रही हैं या सीखने के लिए पढ़ रही हैं? नहीं, वो तो सब कलर और वो सब था, तो मैं ऑलरेडी 2 बुक तो पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मंथ्स है ना मुझे नहीं आते, थोड़े भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ। याद कीजिए, ठीक है, बहुत आसान। फरवरदी दिवस खुरदार, तीर मुर्दाद शहरीवर, मेहराबान आजर दी बहमन स्पंद, ठीक है। तो और क्या मैंने सिखाया था? कोई चीज रही तो नहीं जिसकी प्रैक्टिस और कराऊं? आप लोग बताइए, किसी और चीज की कराऊं जल्दी जल्दी? जी काय की कराएं, बताएं जी। हेलो, कुदाम की तो कराई, कुदाम कुदाम की करा दी। कुदाम सीब दूसदारी, शुमा कुदाम सीब दूसदारी, आपको कौन सा सेब पसंद है? तो आप कहीं मत सीब गिरमिस दूसदार, हमें रेड वाला सेब पसंद है पहले शुमा। और कोई की प्रैक्टिस? हाँ, बादस यानी उसके बाद, काबलास यानी उससे पहले। मसलन आपसे कहिए जुमा किसके बाद आता है? ये दिन जितने अच्छे याद होंगे ये चीजें तो इतना आसान है। पंज शंबे, जुमे बाद अज पंचशंबे, जुमा जुमेरात के बाद है, और जुमे कब्ल शंबे, कब्ल आज शंबे, सैटरडे से पहले है, सैटरडे से पहले है, जुमेरात के बाद है। जुमे, अब मैं आपसे पूछूं, ये शंबे बादस चंद शंबे, संडे किस दिन के बाद है? आप कहिए शंबे के बाद है। ये शंबे बादस शंबे, दो शंबे बादस एक शंबे, से शंबे बादस दो शंबे, चार शंबे बादस से शंबे। काबुल में जाइए, पंचशंबे काबलास जुमे, पंचशंबे काबलास जुमे, चार शंबे काबलास पंचशंबे, से शंबे काबलास चार शंबे, दो शंबे काबलास से शंबे, एक शंबे काबलास दो शंबे, शंबे काबलास एक शंबे। भले और कोई चीज आया वाया सबकी? अब ये बताइए, खत्म करूं?
कोई चीज रही तो नहीं? भले। बाकी रह जाएगी तो कल इंशाल्लाह समझा दूंगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।